সকলোকে গুড মৰ্ণিং, সকলোকে নমস্কাৰ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো অকণমান ভাবিলোঁ অকণ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে অকণ বহি লৈছোঁ। আৰু কালি যিহেতু ইভিনিং টাইমত আজি অকণ ভিডিঅ'টো অকণ ডিফাৰেণ্ট দেই, চাব একেবাৰে শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট এটা লিখিব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিম। আৰু বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো বিষয়ে জানো আৰু মানে ভিডিঅ'টো চাওঁ। আচলতে কালি ইভিনিং টাইমত আমাৰ মানে আছিলে মাদাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন। আৰু মাদাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যনত আহিছিলে মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় ব্যক্তি ৰাজনীতি জীৱনৰ, মানে এতিয়া তেওঁ যিহেতু নাই। আৰু মই তেখেতক ইমানেই ভাল পাইছিলোঁ সৰুৰ পৰা। আৰু তেখেতৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো, মানে তেখেতৰ মানে পিন্ধনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যিখিনিয়ে নহওক লাগে, মানে গোটেই ৰাজনীতি মানে যিমানখিনি ব্যক্তি আছিলে চবতকৈ মই তেওঁক বেছিকৈ ভাল পাইছিলোঁ। সেয়া হ'ল সুষমা স্বৰাজ। আৰু সুষমা স্বৰাজৰ মানে কথা কোৱা ষ্টাইলবিলাক আপোনালোকে জানেই নহয় কেনেকুৱা আছিলে, আৰু বহুত প্ৰিয় ব্যক্তি আছিলে তেখেতে। আৰু সেই তেখেতকতো জীৱিত অৱস্থাত কেতিয়াও মিলা নহ'লে, লগ পোৱা নহ'লে। আৰু ভগৱানৰ মানে কি নাজানো, মই বহুত মানে তেখেতক ভাল পাইছিলোঁ যে, গতিকে তেখেতৰ জীয়ৰী বানচুকী স্বৰাজক মানে একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা পালোঁ। আৰু ইমান কিউট, ইমান ধুনীয়া, ইমান মানে সুন্দৰভাৱে কথা কয়, আৰু ইমানেই ভাল লাগিলে তেখেতৰ ভাষণবিলাক শুনি। আৰু গতিকে আপোনালোকৰ আগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাবচোন ইমান সুন্দৰ তেখেতে। আৰু 17 বছৰ তেওঁ যে উকিলতা কৰিছে, 17 বছৰ উকিলতা কৰি তেওঁ মনত, মই বহুত ৰাজনীতিক নেতা লগ পাইছোঁ মানে আমাৰ অসমত ধৰক, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া যিসকল ৰাজনীতিক নেতা হয় তেখেতলোকৰ মুখত মানে এটা অহংকাৰ ভাৱ এটা, এই বেলেগ এজন MP MLA কথা বাদ দিয়ক বাৰু, কিন্তু মানে যিবিলাক সাধাৰণ মানে ধৰক মেম্বাৰ বা এনেকুৱাবিলাকৰ মানে মুখত এটা বেলেগ ধৰণৰ অহংকাৰ থাকে মানে সেই বস্তুটো। কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰৰ পৰা একেবাৰে লগ পাইছোঁ, কান্ধত হাত ধৰি মানে কথা পাতিছে, ইমানেই ভাল লাগিলে মোৰ। আৰু আপুনি ভাবিব নোৱাৰে মুখত মানে অকণমান অহংকাৰ ভাৱ নাই। আৰু চাওকচোন আজি ভিডিঅ'টো তেখেতৰে অকণমান মানে ভিডিঅ' ক্লিপ লৈছিলোঁ মই। আৰু ইমান সুন্দৰকৈ ভাষণ দিছে, আৰু আপোনালোকৰো বহুত ভাল লাগিব। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব দেই, যিসকল নতুনকৈ আহিছে। नीलू दीदी मुनीर का से जो बहनें मेरे साथ रोज जाती हैं, वो सारी पर आगे आने अलग गाँव में बड़ा मुश्किल है, अलग गाँव में बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्लीज सब लोग एक ही बात में आ जाए और सब चल जाते, क्योंकि फिर दीदी अपनी बात आ जाएगी। आप जाते रहो, मैं कल आई हूँ, आप रोज आते हो होती है। और अगर किसी ने आत्मसात करा है तो नेहा अनिल शर्मा जी ने करा। एक बार और जरा जोरदार तालियां। हम सबके परम आदरणीय मेरे प्यारे अंकल राधेश्याम जी, मेरे बड़े भाई अनिल शर्मा जी, बिंद्रा अंकल, वो होती है जो इतनी छोटी छोटी महीन चीजों से बता देती है कि आपकी मानसिक और आपके मन की दशा क्या है। मेरा दुर्भाग्य है कि आज जब मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा रण लड़ रही हूं, तो आज माँ यहाँ नहीं है और कृष्ण उनको चुरा कर ले गए। शायद कान्हा को मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे आशीर्वाद के रूप में इतनी सारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है जो उनकी कमी थोड़ी सी, उनकी खलिश पूरी कर रही है। तो आज आपके माध्यम से उनको वेरी हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगी। आज आप सबके बीच में झोली फैलाकर आशीर्वाद मांगने आई हूं, कर्म का आशीर्वाद मांगने आई हूं। ये आशीर्वाद मांगने आई हूं कि अगर 4 जून के बाद कोई दायित्व सेवा का आप लोगों ने दिया तो उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभा पाऊं, लेकिन सबसे पहले आपसे विजय का आशीर्वाद मांगने आई हूं।
तो आपसे करबद्ध निवेदन है, झोली फैलाई है, दोनों हाथ ऊपर कर कर मुझे विजय का आशीर्वाद दे दीजिए। 25 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। देखिए 25 मई को आप जाइएगा, अपने पूरे परिवार के साथ जाइएगा, स्वयं जाइएगा, अपनी कीर्तन मंडलियों के साथ जाइएगा, अपनी सासों को लेकर जाइएगा, अपनी नंदों को साथ लेकर जाइएगा, दोस्तों को साथ लेकर जाइएगा, मैं कहती हूँ दुश्मनों को भी साथ ले जाइएगा। क्योंकि 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम, मेरे साथ बोलिए 25 मई का दिन। आपकी गर्मी की छुट्टी कब शुरू होगी? 26 मई को। कब शुरू होगी? 26 मई को, क्योंकि मैं जानती हूँ उस दिन बृहस्पतिवार को छुट्टी है, फिर शनिवार और रविवार आ रहा है। मैं जानती हूँ पूरी दिल्ली को फ्राइडे को बुखार चढ़ने के बड़े चांसेस हैं। लेकिन अरे भाई क्रोसिन पहले ही खा लीजिएगा। याद रखिएगा शनिवार का दिन 25 मई राष्ट्र के नाम। और मैं वचन देती हूँ, अपनी मातृशक्ति को वचन देती हूँ, यदि आपने सेवा का मौका दिया तो आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन आपके बीच में मौजूद रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपके लिए उपलब्ध रहकर, आपकी समस्याओं के निवारण और निदान के लिए पूरी कोशिश करूंगी, अथक प्रयास करूंगी। पेशे से वकील हूँ, आप सबके आशीर्वाद से वकालत में ये मेरा 17वां साल है। डिपार्टमेंट्स और लोगों की नाक में दम करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। माफ करिएगा लेकिन सांस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वो प्रॉब्लम आप खूब हैंडल करना, नहीं हो जाना। दूसरा वचन देती, जब भी ये आवाज गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी। ये आवाज यहाँ उपस्थित मेरी एक एक मात्र शक्ति की आवाज मेरे साथ गूंजेगी। और तीसरा वचन देती हूँ, आज जितना प्यार, जितना स्नेह आपने मुझ पर न्यौछावर करा है, जितनी मेहनत भाभी आप कर रही हैं, मैं वचन देती हूँ सार्वजनिक तौर पे कभी आपके इस भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। आप मुझे कह रही भाभी होने का फर्ज निभा रही हो, आप भाभी होने का फर्ज निभाना, लेकिन मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। इनको कभी अकेले नहीं आने देती थी, कहती नेहा के बिना एंट्री बंद है। तो दिवाली पे हमेशा हम जाते थे, उनको विश करते थे और वो मुझे ही गिफ्ट देके वापस भेजती थी। अनिल भैया सुन लिया आपने? सासू माँ का फर्ज निभाती थी, अब मैं भाभी का निभा रही हूँ। आपने सुन लिया? खबरदार अगर दिवाली पे अकेले मिलने आया तो बिल्कुल। अभी तक मुझे सिंगल गिफ्ट मिल रहा था, सिंगल आशीर्वाद मिल रहा था, अब डबल मिलेगा। देखा मेरा घाटा कर रहे हो पिछले 4 साल से। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, जब देवताओं को असुरों पे चढ़ाई करनी थी ना, तो वो भी अकेले नहीं कर पाए थे, उनको भी हमारी शक्ति का आवाहन करा था, माता दुर्गा का आवाहन करना पड़ा था। आप ये देखिए, भगवान नारायण के हाथ में, विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, त्रिशूल महादेव के हाथ में है ना, और कमंडल जो है ब्रह्मा जी के हाथ में है, जिसमें सृजन की शक्ति है। लेकिन केवल एक हमारे पूरी की पूरे हमारे हिंदू या सनातन संस्कृति में एक ही व्यक्ति है जो त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और कमंडल एक साथ धारण कर सकता है, और वो है माता दुर्गा। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शक्ति केवल हमारी नारी शक्ति धारण कर सकती है। तो ये जो महायज्ञ है, लोकतंत्र का महायज्ञ, इसमें मेरी आहुति अपूर्ण रह जाएगी अगर मेरी माताओं और बहनों की शक्ति मुझे नहीं मिलेगी। और मैं जब शक्ति की बात करती हूँ, मैं केवल आपके वोट की बात नहीं करती।
मैं केवल आपके वोट से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का भी मुझे आवाहन करना है, क्योंकि मैं जानती हूं नारी जब ठान ले तो नारी नियति को भी बदल सकती है। मौत के मुंह से वापस लेकर आई थी ना देवी सावित्री अपने पति को। मैंने कहा ना, नारी जब ठान ले तो नियति को भी बदल सकती है। इसीलिए आप सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं, प्रचार के आखिरी 12 दिन बचे हैं, मेरी मदद करिए, अपने प्रचार प्रसार और प्रभाव की शक्ति का आप उपयोग करिए, ताकि मेरी नियति के निर्माण में आपका योगदान हो। लेकिन ये आवाहन मैं अपने सत्ता के मोह या राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं कर रही, बल्कि उस युग पुरुष के लिए कर रही हूं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। एक ऐसे नेता जो केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, जो महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना पड़े, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, तो क्या करना है हमें? 25 मई का दिन होगा, अजी 25 मई का दिन होगा, 25 मई का दिन होगा, आप सभी के आशीर्वाद से मैं धन्य हुई। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय माता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।